Hello, student. How are you all? Hope all is well. As can be said here about me, everything is fine with myself too. Today, we are going to do the next chapter in geography, that is weathering and denudation. Today, in this chapter, we are going to understand the meaning, the types, and the effects of weathering. Now, what are the different types of weathering? They are physical weathering. Physical weathering comprises of block and granular disintegration, exfoliation. Then we have chemical weathering, in which oxidation, carbonation, hydration, and solution. Then we have biological weathering caused by humans, plants, and animals. Then we learn the meaning and agents of denudation, that is the work of river and wind. Then stages of the river courses and associated landforms, the V-shaped valleys, waterfalls, meanders and deltas. Then we have wind, deflation, hollows and sand dunes. The wind causes deflation, hollows and sand dunes. So let's go into a little deeper in this chapter. The changing landscape. What is a landscape? The scenery that you can see, the natural scenery that you see is the landscape. Landforms are constantly changing. The extent to which a landscape is modified depends on how many factors, such as internal processes, external forces, nature of rocks, and the length of time these processes have been acting. Okay, so there are many factors which change the landscape. Okay, now if you see the box given in your textbook, change on the surface of the earth, there are internal processes and there are external processes. The internal process comprises of the tectonic movements like earthquakes, mountain building, volcanic eruption. All these are internal processes. The external processes are weathering, that is temperature changes, moisture, frost, then gradation, that is river and glaciers, winds and waves. These also cause weathering or the change in the landscape. Then the erosional work done by the rivers, glaciers, winds and waves, that is transportation, erosion, deposition, all these things. So what is weathering? The weathering or the wearing away or breaking down of rocks by agents present in the atmosphere like temperature, moisture and frost is known as weathering. वेदरिंग मतलब जब हवा के द्वारे, हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से या ऐसे कोई भी एजेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, इसके वजह से अगर कोई पत्थर या चट्टान टूटता है और वो छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाता है, इसे हम वेदरिंग कहते हैं. Removal of the weathered rock fragments is not involved in weathering. यानी वेदरिंग सिर्फ उसका ब्रेकिंग डाउन है, उसका ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है. उसे रिमूव करना, उसे निकालना, तो इसे वेदरिंग में नहीं गिना जाता है. It is essentially a static process in which the weathered material rests in situ. समझ गया? जो वेदर्ड मटेरियल है वो इन सितु मतलब जहाँ पे वो टूटता है वहीं पर वो बिखर जाता है, उतने ही इलाके में. ये हवा के माध्यम से आगे नहीं जाता, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है. ये नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या जानवरों के द्वारा अगर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसे हम वेदरिंग में नहीं गिनते. इन सितु मीन्स वहीं पर, एट द सेम प्लेस जहाँ पे ये टूटा है वहीं पर.
Only the downslope movement of weathered material under gravity is included in weathering. On the basis of its impact on rocks, weathering can be of three types: मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल. तो अगर एक पहाड़ में वेदरिंग होता है, पहाड़ का चट्टान टूटकर नीचे खाड़ी में गिरता है, तो ये वेदरिंग में गिना जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से हुआ है. या डाउन स्लोप अगर आ गया, लुढ़कते लुढ़कते डाउन स्लोप अगर आता है, तो ये भी वेदरिंग में ही गिना जाता है. डेन्यूडेशन में गिना नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में गिना नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही नीचे खींचा गया है. पहाड़ से ऊपर गिरकर अगर वो सीधा नीचे खाड़ियों में गिरता है, तो ये वेदरिंग का ही प्रोसेस है. तो वेदरिंग तीन प्रकार के होते हैं: मैकेनिकल वेदरिंग, या मैकेनिकल बोलो या फिजिकल बोलो, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग. Any of the various weathering process that causes physical disintegration of exposed rocks without any change in the chemical composition of the rocks is known as mechanical or physical weathering. तो अगर कोई चट्टान टूटता है, बिखरता है, लेकिन इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते या इसमें इसके कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग कहते हैं. कोई अगर चट्टान, बड़ा सा चट्टान है, वो टूट जाता है बारिश की वजह से, स्नो की वजह से, या पेड़ों की जड़ों की वजह से ये टूट जाता है, तो इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है. पत्थर में जो कंपोनेंट्स थे वो वैसे के वैसे ही वही कंपोनेंट्स रहेंगे, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. इसे हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं. देयर आर डिफरेंट कॉजेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. That includes plants and animal activity, fracturing and abrasion. Mechanical weathering generally occurs in areas that have a considerable diurnal range of temperature and fluctuations where the temperature may fall down to freezing points. तो मैकेनिकल वेदरिंग जनरली कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुत सारा टेम्परेचर का जो रेंज है वो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है. दिन में तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा. या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो यहाँ पर आपको फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा दिखाई देगा. इसे हम डायurnal रेंज कहते हैं. दिन और रात के टेम्परेचर में फ़र्क को डायurnal रेंज कहते हैं. एक साल का जो टेम्परेचर होता है गर्मी और ठंडी का, गर्मी में नागपुर में 47 डिग्रीज टेम्परेचर है और ठंडी में 7 डिग्रीज टेम्परेचर है. तो डायurnal रेंज कितना हो गया? 47 में से 7 निकालो, 40 डिग्री डायurnal रेंज है. दिन और रात के टेम्परेचर में भी हम डायurnal रेंज कहते हैं, और साल में जो मौसम होता है, सर्दी और गर्मी का जो मौसम होता है, इसके टेम्परेचर को भी हम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं. फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग बिकॉज द वेदरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट विथ हीट, वाटर, टेम्परेचर, आइस, wind, etc. Air and water have large amounts of energy and momentum. When they collide with stationary rocks, they impart their high value of momentum and energy to the rocks, which results into fragmentation of some amount from main rocks, which is called as physical weathering. तो वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग जो होता है ये किसी चीज़ के मैकेनिकल कांटेक्ट से होता है, जैसा हवा हो गया या पानी हो गया. अगर बार बार नल की बूंद ज़मीन पर गिरती है तो पानी का जो बूंद टपकता है, टपक करके उस सीमेंटेड इलाके में, तो हर एक बूंद से बार बार एक ही जगह टकराने से उस सीमेंट के इलाके में हल्का सा गड्ढा हो जाता है. ये मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग है. वैसे ही नदी
और समुद्र में लहरें आकर किनारों से जब टकराती है, तट से टकराती है, तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं ये चट्टानों को तोड़ देती है। इस चट्टानों को तोड़ने को ही फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ग्रैन्युलर disintegration due to temperature changes. The coarse-grained rocks are more affected by shattering process in hot deserts due to high range of daily temperature. तो डेजर्ट में जो पत्थर होते, चट्टान होते हैं, वो कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब रफ, उनका सरफेस बहुत रफ होता है। तो यहाँ पर ये जो डेजर्ट में जो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर पड़ता है, डेली हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर पड़ता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ के पत्थरों को बहुत आसानी से डिसइंटीग्रेट कर सकता है ये डायर्नल रेंज। द कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स आर मोर अफेक्टेड बाय शैटरिंग प्रोसेस in hot desert due to high range of daily temperature. If the rocks are coarse grained and are of different colors, they absorb insolation differently. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर रॉक्स जो है वो अलग अलग रंग के होते हैं या कोर्स ग्रेन्ड होता है, कुछ ऊंचा है, कुछ हल्का सा नीचे है, कुछ समय के लिए परछाई में चला जाता है, तो इनका जो हीटिंग और कूलिंग टाइम है इसमें वेरिएशन आ जाता है, इसमें तब्दीली आ जाती है ना। अगर हम जो पुराना जो हम पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते थे, आजकल के एलईडी वाले बल्ब नहीं, पुराने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर यह ऑन रहा और हमने इसके ऊपर एक बूंद पानी डाला तो फूट जाता था। गर्मी और सर्दी की वजह से इसमें अचानक से वो कांच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फूट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो हीटिंग टाइम है अलग अलग रंग का, जो गाढ़े रंग होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। जो फीके रंग होते हैं वो समय लेते हैं गर्म होने के लिए। तो अगर यहाँ पर अलग अलग रंग के चट्टान होंगे, इनका हीटिंग और कूलिंग टाइमिंग अलग होगा, जिसकी वजह से जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। Thus the different parts of the same rock mass receive and absorb different amount of insolation. Consequently, the different parts of the rock are affected by differential expression and contraction, which causes stress within the rocks, due to which they are disintegrated into smaller particles. Such type of shattering of rocks is called granular disintegration, which is more active in hot desert areas. ठीक है, तो exfoliation due to temperature and wind. Exfoliation weathering is also known as onion weathering. Exfoliation मतलब छिलटे निकलना, पहले ऊपर का छिलटा निकलेगा, फिर नीचे का लेयर टूटेगा, ऐसे वेदरिंग को एक्सफोलिएशन कहते हैं। Exfoliation weathering, also known as onion weathering, refers to peeling off concentric shells of rock due to combined action of heat and wind in hot, arid and semi-arid regions and monsoon lands. Exfoliation is more common over crystalline rocks. The outer shells of rocks become loose due to alternate expansion and contraction due to high temperature during daytime and comparatively low temperature during night, respectively, and these loosened shells are removed, peeled off by strong winds. तो जनरली जो रेड सॉइल होता है, रेड रॉक्स होते हैं जिसमें आयन ज़्यादा होता है, आयन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जैसे सेमिनरी हिल्स के इलाके में अगर आप जाओगे या कार्टल रोड में अगर आप टूवर्ड्स सांदीपनी स्कूल जाते हैं, सीडीएस स्कूल से सांदीपनी स्कूल की तरफ जाते हैं, तो रोड के दोनों साइड में देखना चट्टानों को काट के रोड बनाए गए हैं। तो वहाँ पर हमें ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं जो कि राउंड पत्थर होते हैं और लगता है कि वो ऊपर का लेयर और नीचे के लेयर में हल्का सा गैप रहता है, तो इसे एक्सफोलिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन रॉक्स में ज़्यादा होता है और इनका जो आउटर शेल जो है लूज़ हो जाता है गर्मी की वजह से, दिन में गर्मी और रात में ठंडी की वजह से, और ये बारिश और हवा की वजह से लूजन होकर निकल जाता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब क्या? बर्फ़।
रात को सर्दी इलाके में फ्रॉस्ट गिरता है, स्नो के जैसे बारीक बारीक, जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीज़र में जो किनारे में जो बारीक बारीक आइसिकल्स जमते हैं उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। कैसा इंपॉर्टेंट है? देखो, कुछ चट्टानों में अगर कोई क्रैक्स वैक्स रहा, क्रेवाइसेस रहा, हाँ, बारिश के वक्त या सर्दी के वक्त ड्यू, उसमें ड्यू गिरता है सुबह शाम को, और रात में जब बहुत ज़्यादा सर्द हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ये ड्यू ड्रॉप्स, ये वाटर जो है वो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ बनने की वजह से क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है, सॉलिड बनने से एक्सपैंड होता है और ये चट्टानों को तोड़ देता है। Bare rocks surface are heated during daytime, due to which their outer layers expand. During nights, the rocks are cooled due to relative decrease in temperature, which leads to contraction in the outer layer of the rocks. Thus, the repetition of expansion and contraction of outer rocks layers causes tension and stresses, which introduce parallel joints in the rocks. The rocks then are disintegrated along these joints, and broken big blocks of rocks are dislodged from the main rock mass and fall down the slope under the impact of gravity. This process of physical weathering is called as block disintegration. तो जो चट्टान जो है वो जो ज़मीन से ऊपर की सतह पर है, जो एक्सपोज्ड है, मिट्टी से बाहर है, इस पे दिन में क्या होता है, यहाँ पर हॉट वेदर की वजह से, गर्मी की वजह से ये एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, रॉक में इलास्टिसिटी होती है। रॉक जो होता है वो एक प्रकार का इलास्टिक मटेरियल है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो रॉक दिन के समय में गर्म होता है, गर्म होने से ये एक्सपैंड होता है, फिर रात में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और इन क्रैक्स में पानी जम जाता है। ये क्रैक्स अगर पैरेलल रहे तो ये पानी भरने की वजह से इसमें जब पानी भर जाता है और ठंडी में जब इसमें बर्फ़ बन जाता है, ये पानी बर्फ़ बन जाता है, ये दोनों हिस्सों को, लेयर्स को अलग कर देता है और ग्रेविटी की वजह से ये लेयर जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसे हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि ब्लॉक्स में टूटते हैं ना, इसलिए इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है वेदरिंग का, है बायोलॉजिकल वेदरिंग। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ड्यू टू केमिकल एंड और फिजिकल एजेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, जिसमें केमिकल और केमिकल या फिजिकल एजेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से उनमें से जो केमिकल्स निकलता है, फॉर एग्जांपल चूहे ने बिल बना दिया है ज़मीन में। चूहा जो है वो, उसको जब नेचर्स कॉल आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बिल से बाहर निकलेगा नेचर कॉल अटेंड करने में, वो वहीं पर गंदगी फैला देता है। उनके जो यूरिन में जो यूरिया होता है, जिसकी वजह से एक प्रकार का केमिकल वेदरिंग होता है। या पेड़ हो गया, पेड़ की जड़ें हो गई, किसी ने एक चट्टान के ऊपर बैठकर बेर खाया, बेर की गुठली वहीं पर रह गई, थोड़ा सा सॉइल मिल गया, थोड़ा मॉइस्चर मिल गया, सनलाइट मिल गया और बेर का पेड़ उस चट्टान पे उगने लग गया। धीरे धीरे वो बेर का जो पेड़ का जो रूट है, जड़ है, वह चट्टान को तोड़ना चालू कर देता है, उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। इस प्रकार के वेदरिंग को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। Burrowing animals can break up rocks underground or move rocks fragments to the surface, exposing the rocks to more intense chemical, physical and biological processes, and so indirectly enhance the process of rock weathering. Burrowing जैसे फॉक्स हो गया, माइस हो गए, खरगोश हो गया, रैबिट्स हो गए, हेयर हो गए, है ना, ये ज़मीन में अपना बिल बनाते, घर बनाते हैं। तो या तो ये चट्टानों को खुद अपने पैने नाखूनों से, दांतों से काट कर तोड़ देते हैं,
तो ज़मीन में जब ये बिल बनाते हैं अपने पैने दांतों से, नाखूनों से ये खुरदते हैं, चट्टानों को खुरद लेते हैं, और कभी कभी जो अंदर के जो रॉक्स है, पेबल्स है, उसको बाहर निकाल कर एक्सपोज कर देते हैं हार्श कंडीशन में। केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग को ये और बढ़ा देते हैं। मैनी अ टाइम वेदरिंग इज ऑल्सो कैरिड थ्रू सेलेशन। सेलेशन क्या होता है? सेलेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस known as chelates. They have the ability to decompose materials and rocks by the removal of metallic cations. So, as I was telling you all, that when these animals they urinate, the urine contains very strong chemicals. These chemicals leads to chelation in a biological way, where organism it produces substance that are known as chelates, and these chelates have the ability to decompose minerals and rocks by removing the metallic cations, and they help in disintegrating the rock. Algae, lichens, bacteria and mosses often grow on rock surface, especially in humid regions. They produce weak acids which convert some of the minerals to clay. Algae growth can weaken many rocks types and make it more open to weathering. अलगी मतलब काई। कई बार आपने क्या देखा, जो बहुत सारे पुराने मकान में जिसमें मरम्मत नहीं की जाती है, जिसमें वाइट वॉशिंग, सफाई नहीं करते हैं, उसमें काई जम जाती है, अलगी जम जाती है, और धीरे धीरे करके अलगी क्या करती है, इसको पपड़ी निकाल देती है बिल्डिंग से, सीमेंट की पपड़ी गिरा देती है, और कुछ सालों में ये बिल्डिंग ही गिर जाती है। तो अलगीज हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, लीचेंस हो गए, ये इनमें भी ये क्षमता, एबिलिटीज़ है कि वो एक वीक एसिड, एक प्रकार का एसिड है जो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि वह समय के साथ चट्टानों को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। ट्रीज, बुशेस एंड अदर प्लांट्स मे टेक रूट इन क्रैक्स इन रॉक्स एंड मे ग्रो फ्रॉम देयर. As the plant grows bigger, the roots grow bigger and deeper, widening cracks and splitting them apart. Decaying roots also add organic acids to the joint, speeding up the weathering process. Chemical weathering. Decomposition and disintegration of rocks due to chemical reaction is called chemical weathering. Chemical weathering leads to changes in the chemical composition of mineral present in the rocks. तो chemical weathering क्या होता है? chemical weathering, अगर फॉर एग्जाम्पल एसिड रेन हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो पोल्यूशन की वजह से क्लाउड्स जो है वो पोल्यूटेड हो गए, जो बारिश जो गिरी वो पोल्यूटेड हो गई, उसमें केमिकल्स आ गए, और इसकी वजह से जो लाइमस्टोन के जो मॉन्यूमेंट्स है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के जो मॉन्यूमेंट्स है, ये बहुत आसानी से कोरोड और इरोड हो जाते हैं। इसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज अ मोर पोटेंट टाइप ऑफ वेदरिंग इन ह्यूमिड रीजन्स. द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो. Generally, the rate is higher in tropical areas with higher temperatures. This type of weathering implies removal of some of the minerals from rocks so that the rock become porous and weak and starts crumbling. It involves a number of chemical processes, among which solution, oxidation, carbonation and hydration are most important. तो chemical weathering के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस है, यहाँ पर अधिकतर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि केमिकल वेदरिंग क्या करता है, इसमें जो पोल्यूशन जो होता है, केमिकल्स जो आते हैं, वह कुछ प्रकार के रॉक्स को पोरस बना देते हैं, कुछ रॉक को, कुछ जैसे मैंने लाइमस्टोन बताया, सैंडस्टोन बताया, इसको कोरेट कर देते हैं। और अगर कोई पत्थर में लाइम की मात्रा है, सैंड की मात्रा है, तो ये पत्थर अपने आप क्रम्बल हो जाता है और ये टूट जाता है। सॉल्यूशन हमने पढ़ा, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन आर इम्पॉर्टेंट। तो ये सॉल्यूशन क्या है?
Solution is the process by which certain minerals are dissolved by acidic solutions. For example, calcite in limestone is dissolved easily by carbonic acid. Rain that percolates through cracks and fissures in limestone beds dissolve calcite, making wider cracks that can ultimately develop into cave systems. तो जनरली आपको केव्स कहाँ मिलेंगे? केव्स ऐसे पहाड़ों में मिलेंगे जहाँ जो पहाड़ जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है. लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, पचमढ़ी में आपको गुफा मिलता है ना, पचमढ़ी में गुफे है. फिर माउंट आबू में नेचुरल केव्स है. ये नेचुरल केव्स कैसा फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ कोरोजन ऑफ विंड एंड वाटर, वेदर कंडीशन की वजह से. ऑक्सीडेशन. In the process of oxidation, the process is in which oxygen of atmosphere reacts with the minerals in the rocks. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वह रॉक की जो मिनरल्स है उससे रिएक्ट करता है. और नंबर ऑफ मिनरल अदरवाइज इनसॉल्युबल बिकम सॉल्युबल आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन. जहाँ जंक हो गया, रस्ट हो गया है ना, अगर हम खीले को, एक लोहे का खीला ले लिया, उसको कुछ समय के लिए बाहर रख दे तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जंग चढ़ जाता है. तो अगर वह ड्राई एटमॉस्फेयर में रखा गया तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है. लेकिन उसको अगर खुले आसमान के नीचे रख दिए, बाहर रख दिए, तो उसमें ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है. और नंबर ऑफ मिनरल अदरवाइज इनसॉल्युबल बिकम सॉल्युबल आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन. This process is most effective in case of rocks having a large content of iron compounds. Oxidation of such rocks forms a yellowish or reddish crust that crumbles readily. Oxidation of rocks containing iron compounds is similar to rusting of iron. This is a result of oxygen combining with iron in presence of moisture and formation of iron oxides, which easily crumbles and can be removed by rainwater also. Carbonation. Carbonation is the result of reaction of atmospheric carbon dioxide with rock minerals, and some of the minerals that are otherwise not soluble can be removed easily through this process. तो जिस प्रकार से ऑक्सीडेशन है उसी प्रकार से कार्बोनेशन है. कार्बोनेशन में यानी जो रॉक्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और कार्बन से रिएक्ट करने के बाद में ये पोरस बन जाता है, टूट जाता है. लाइमस्टोन इज स्पेशली सस्पेक्टेबल टू द प्रोसेस. जनरली द लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इज नॉट सॉल्युबल इन फ्रेश वाटर, बट रेन वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड in its act as a mild carbonic acid and converts the chemical carbonate into soluble calcium carbonate. Thus, the rainwater erodes limestone and other calcareous rocks easily through this process. तो इसलिए जो ताजमहल जो इरोड हो रहा है, ताजमहल जो येलोइश कलर का हो रहा है, वह इसी वजह से हो रहा है. Hydration. Hydration is a process of involving absorption of water by some minerals in the rocks and their crumbling into powdery mass. Absorption of water leads to expansion of the minerals particles and it causes stress within the rocks, and the rocks may crumble due to this stress. Clay is an example of rocks highly susceptible to this process. Feldspar, which is a common crystalline mineral found in rocks, absorbs water and becomes a mass of clay through hydration. The other minerals forming the rock are thus separated and the whole rock breaks down. Rock containing large clay expands when wet and develops cracks on drying. The alternate wetting and drying may thus lead to disintegration of such rocks. तो फेल्डस्पार एक ऐसा मिनरल है जो बहुत आसानी से क्ले बन जाता है अगर वो पानी में एक्सपोज हो गया. सपोज कोई रॉक है, रॉक के बीच के सतह में फेल्डस्पार है और किसी तरह से पानी ने अपना रास्ता बना दिया इस रॉक तक का पहुंचने का. जब रॉक या फेल्डस्पार पे जब पानी पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्ले बन जाएगा. क्ले की प्रॉपर्टी क्या है?
जब गीला होता है या एक्सपैंड होता है, और जब ये सूख जाता है तड़क जाता है। तो ऐसे गीला होना, एक्सपैंड होना, सूखना, तड़कना, इससे वो पूरी चट्टान को ही तोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो है वेदरिंग होता है। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग के बारे में जानकारी लेंगे।